आज मु तुमको किछि दिन पर तुम सहित डिस्कसन किछ करने चाहूँगी। ए क्रुशियल पीरियड इन कोरोना मु तुम सहित टच रे रही नथली, तो मु क्रुशियल पीरियड डे बाय डे इनक्रीज होची। शटडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन शटडाउन, सो आमे मैंने टच रे इंटरेक्शन रही पारने बोथ स्टूडेंट्स एंड मी। सो मु बहुत चिंतार अच्छी, से तुम गोटे नुआ उपाय मु पढ़ाइबा चाहूँगी थ्रू डिजिटल क्लासेस। आई वांट टू शेयर समथिंग। फर्स्ट मु चाहूँगी किछि ग्रामर तुमको आज किछि नॉलेज देवी। तो पे फर्स्ट कोरोना रे आम के सेफ रखा आउ निजको केमती सेफली घरे रहीकि निजे निजे किछि पाठ पढ़ा किछि अचीवमेंट करवा थ्रू डिजिटल क्लासेस। सो मु आज डिस्कस करने चाहूँगी सेंटेंस। इंग्लिश ग्रामर गोटे पार्ट अच्छी सेंटेंस। सेंटेंस पे माने सेंटेंस माने कौन? सेंटेंस गोटे कौन केते गोटे वर्ड रो सम्मिश्रण रे गोटे मीनिंगफुल गोटे स्टेटमेंट होतिबो ताकू हमें सेंटेंस कहबा। इंग्लिश रे कौन? द सेंटेंस is a group of words with expressing a statement. Group of meaningful words. Meaningful words. So first, for an example, what is sentence? Sentence is nothing but it is a group of meaning words to consist a statement. For an example, I am a boy. This is a sentence. I am a boy. I am a boy. I is a word, am is a word, a is a word, and boy is also a word. So grouping these words in a meaningful way, that is sentence. Okay? First thing, grouping these words in a meaningful way that express a statement. That is statement. That is a sentence. So sentence can be different types. Mainly we can discuss sentence can have 4 types. One is statement, another is interrogative, third one is exclamatory, fourth one is imperative. Mainly divided in 4 parts. Okay. Then sentence can be divided into 4 types or divided or classified. Okay, classified. First one is statement. Second one is interrogative. Third one is exclamatory. Fourth one is imperative. Okay, these 4 classifications are on sentence. So first of all, we know different types of sentence. Then we can discuss statement, then interrogative, then exclamatory, then imperative. So first we want to discuss what is statement. This is the first category of sentence. What is statement?
statement. Statement, sentence. Any other way you can say that is also assertive statement, sentence. We can say declarative sentence. We can say positive sentence. Different types, different names are available in statement. Okay. So statement is nothing but is positive sense. For an example, you are a good girl. You are a good girl. Okay, this is a first. This is a sentence. We can say first. This is a sentence because the group of words, group of meaningful words to constitute a statement. So why this is under statement sentence? One rule is under statement sentence, that is first sentence should be begins with a capital letter. Here Y is the capital letter and begins with YOU and ended with a full stop. Then only we can say it is a statement sentence which is under a sentence category. Okay. So second one is interrogative. Interrogative. So पिलाने इंट्रोगेटिव माने कौन गोटे क्वेश्चन मार्क मुंडर आसो गोटे क्वेश्चन व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Interrogative sentence is nothing but a question mark sentence, or other way we can say it is a question mark. WH word sentence begins with WH words and begins with the helping verbs. For first helping verbs, that is for an example, what is your name? What is your name? Interrogative sentence. For an example, interrogative sentence is nothing but it is a question mark sentence. गोटे जिनस मुंड को आसो जे WH वर्ड रु जो क्वेश्चन सेंटेंस तैयारी हेबो ताको हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहबा बा जदि हमको क्वेश्चन एराइज होछु को सेंटेंस रे then only we can say this is under interrogative sentence. So for an example, what is your name? What is your name? तुमो नाम कौन अटे? तो this word indicates interrogative. Interrogative. So also second rule is ended with question mark. This is very important. If you can write what is your name, this is wrong. Why? This is not ended with question mark. This is very important. So then only if you see a sentence, what is your name? How old are you? How beautiful? How is you beautiful? How are you beautiful? Then the sentence is under interrogative. Yes? Okay. Third one is first rule janlo WH word rule start heithibo. Second rule ended with question mark. Then this is interrogative sentence. Okay. Then third one is exclamatory. Exclamatory sentence. बिले थर्ड कैटेगरी हमर कौन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आम पे जाना आम दी प्रकार सेंटेंस जानी पॉजिटिव नेगेटिव और WH वर्ड यूज करके इंट्रोगेटिव. सो व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी? व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी आम मुंड को आसो जे एक्सक्लेमेटरी कौन आम जाना दरकार. एक्सक्लेमेटरी मीनिंग आसला माने टोटली डिफरेंट वे. दिस इज एस्टोनिश्ड. हाउ ब्यूटीफुल सी इज. ओडिया में कहबा सी किते सुंदर. सो गोटे स्ट्रेंज आसूची आम माइंड को. सो फॉर एन एग्जांपल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ शी इज. ओके.
हाउ ब्यूटीफुल सी इज सो आम कह मुंड को आसवा मैडम एटा हाउ रु स्टार्ट होती इज इट ए इंट्रोगेटिव नो फर्स्ट थिंग तो दिस इज नॉट ए डब्ल्यूएच वर्ड किंतु जेहेतु से कितने सुंदर अच्छी आम मुंड को गोटे आस क्वेश्चन भाया भी आसुच्ची किंतु ता सहित मिसिक रही स्ट्रेंज हाउ ब्यूटीफुल सी इज so it indicates strange astonish so this is under exclamatory sentence and second rule of the exclamatory sentence kono this is ended with exclamatory mark this is very important if we can write how beautiful she is this will be omitted okay if you can omit this then the sentence is fully incorrect केमिति लिखिबो ना how beautiful she is exclamatory मार्क को तुम ओमिट करके फुल स्टॉप देल दिस इज फुल्ली इनकरेक्ट बिकॉज तुम एक्सक्लेमेटरी मार्क को ओमिट कर दौच सो दिस इज नॉट ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस yes or no yes or no okay this is the fourth category that is imperative sentence पुणी आम मुंड को आसला imperative कौन सेंटेंस स्टेटमेंट बुझिले इंट्रोगेटिव बुझिले एक्सक्लेमेटरी बुझिले व्हाट इज इंपोरेटिव तो इंपोरेटिव सेंटेंस पिला माने मुंड को आसले आम गोटे जिनस चिंता करवा सम ऑर्डर किछि ऑर्डर तुमको दिया जाइछि ऑर्डर माने कौन आदेश दियागला घर जाऊचु शट द डोर बा एसी रूम रे अच्छो रूम खोली दउचु एसी रूम रे डोर ओपन रहा कथा नुह तुमको जड़े घर से रूम रू बाहर बेलू जड़े कौच शट द डोर ओके सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस शट द डोर ओपन द विंडो डू नॉट pluck the flowers फूल तोड़ ना जड़े बारी तुम फूल तोड़ दूसरी तुम कह फूल तोड़नी डोंट प्लक द फ्लावर्स दिस इज वन टाइप ऑफ ऑर्डर तुम माइंड रे गोटे जिनस रोची दिस इज वन टाइप ऑफ ऑर्डर देन ओनली यू कैन से दिस इज अंडर इन इंपोरेटिव सेंटेंस ओके these four parts are main parts of a sentence okay so पिला माने जानिले आमे sentence कौन ना the group of words is group of words which is expressing statement with a meaningful statement गोटे किछिटा वर्ड रो ग्रुपिंग रे गोटे सेंटेंस तैयारी होची जोटा कि बहुत मीनिंगफुल जदि पहले मीनिंगफुल हमर काई कह जाउची ना धरो तुम कहबो रामो इज ए गुड बॉय नथिंग बट एटा गोटे ग्रुप एक वर्ड अच्छे विथ ए ब्यूटीफुल मीनिंग रे अच्छी अरेंज एक अच्छी बट आमे कहबा रामो गुड बॉय इज दिस ए सेंटेंस नो दिस इज नॉट ए सेंटेंस सो से कही मीनिंगफुल वे रे अरेंज ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स देन ओनली यू कैन से इट इज ए सेंटेंस ओके देन तुम जान लो मुझे पढ़ेली सेंटेंस आर ऑफ 4 टाइप्स वन इज स्टेटमेंट अनदर इज इंटरोगेटिव थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटरी फोर्थ वन इज इंपोरेटिव ओके सो इंपोरेटिव सब जान लो स्टेटमेंट रो कौन रूल इंटरोगेटिव रो कौन रूल एक्सक्लेमेटरी रो कौन सेंटेंस रो कौन रूल इंटरोगेटिव रो कौन रूल सब रूल गुड़ा को जान लो
सो पिले माने मु एबे गोटे तुमको देबी केते गुडी ये क्वेश्चन देबी तुम माने कहबा सहित मु कहबी तुमको बुझेबी सेटा को अंडर रे जाउछ को सेंटेंस अंडर रे जाउछ फर्स्ट वन third one पहले मु चारोटी सेंटेंस लिखिली एट आमे जानिबा आमे जहाँ पढ़िले से सब सेंटेंस कैटेगरी ए सेंटेंस को टच करुच कि नहीं आमे देखिबा ओके फर्स्ट सेंटेंस रामो इज वेरी क्लेवर सॉरी रामो इज ए वेरी क्लेवर बॉय लिखिबा ओके रामो इज ए वेरी क्लेवर बॉय राम गोटे बहुत चतुर पिला सो आम ये सेंटेंस कौन इंडिकेट को पाउचे कौन दिस इज ए एसर्टिव सेंटेंस बट डिक्लेरेटिव सेंटेंस बट स्टेटमेंट सेंटेंस बट ट्रूथफुल सेंटेंस बिकॉज इट गिव्स यू ए पॉजिटिव सेंस एंड ऑल्सो स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर आर एंड एंडेड विथ फुल स्टॉप सो दैट इज ए स्टेटमेंट कैटेगरी ऑफ द सेंटेंस गोटे कैटेगरी दैट इज स्टेटमेंट ओके हम कौन लिखा ये स्टेटमेंट सेकेंड वन हु आर यू तुम्हें किए गोटे कौन इंडिकेट करुच्ची गोटे क्वेश्चन अराइज होची सो आम तो कहीपर इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड ऑल्सो WH टू स्टार्ट एंड एंडेड विथ क्वेश्चन मार्क then you can say it is a interrogative sentence how ugly Sita is third sentence and it is also ended with exclamatory sentence then we can say it is a exclamatory sentence block exclamatory do not block the flowers it is also a sentence category which type of sentence हम कहि परिबा को ना हम सेंटेंस देखिले एथरो इंडिकेट कोन हो जानि छि पिले माने इट इज ए ऑर्डर डू नॉट ब्लॉक द फ्लावर्स फूलो तोलो ना तले आदेश आसुछि हमकु सो दिस इज अंडर इंपेरेटिव So today class is all about sentence समस्त जान लो सेंटेंस कौन सेंटेंस रे कौन कौन रहिबा दरकार सेंटेंस टा किपरि तयारी होउची सेंटेंस रो कैटेगरी जो कैटेगरी अच्छी चारटा कैटेगरी कहली तुमको केमिति गोटे सेंटेंस को देखिले तुम जानी परबो दिस सेंटेंस इज व्हिच कैटेगरी ता रूल्स भी कहली सो दिस इज ऑल अबाउट सेंटेंस क्लास।